तेलंगाना असेंबली में अपोजिशन लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़, लैंड सर्वे और वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार देने का मामला उठाया। कब जुडिशियल पावर्स देंगे, कब वक्फ बोर्ड की जायदादों को बचाएंगे। सर, फॉर 20 years आई हैव बीन स्क्रीमिंग शाउटिंग फॉर वक्फ लैंड। सर, Microsoft, ISB, Wipro, everything has come on वक्फ लैंड। बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज कम अप ऑन द वक्फ बोर्ड लैंड। तो पूरा बोर्ड का लैंड्स पूरा जा रहा है साहब। तो जब तक जुडिशियल पावर नहीं देंगे, जब तक हम वक्फ प्रॉपर्टीज को बचा नहीं सकते। सर, अब ये फर्स्ट सर्वे में ऑलमोस्ट 77,000 एकर्स ऑफ लैंड है साहब, 77,000। एंड इन द सेकेंड सर्वे अभी मिनिस्टर साहब अपनी रिप्लाई में बोले कि 3,072 एकर्स ऑफ लैंड हैज बीन आइडेंटिफाइड। अगर 13,000 are the institutes, sir. 13,000 are the total institute who have waqf land. But the acreage of waqf land is 3,000, sir. 3,000, sir, अगर गेजेट नहीं आया तो ये 3,000 भी चले जाएंगे। 77,000. Sir, through you, I would like to request the Honorable Minister Sahab to kindly call for a meeting, sir. ये बड़ा vast subject है, sir. Call for a meeting. Let us sit together and see what is the encroachment. Who are the encroachers? And let us sit together and identify and see how best we can protect the waqf land. We need to protect the waqf land, sir. Sir, recently an article came in the newspaper. 1 lakh crore के सब, I would say not 1 lakh crore, sir, 10 lakh crore के वक्फ की जायदादें जो तबाह बर्बाद हो रही हैं, सर। सर, थ्रू यू आई रिक्वेस्ट, सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कि प्लीज बुलाइए और जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को जो देंगे बोले थे वो प्लीज इमीडिएटली वो दीजिए, सर। थैंक यू। अकबरुद्दीन अवैसी के सवाल पर रियासती वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने ऐवान में कहा कि हुकूमत वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा है। हुकूमत वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार देने की कोशिश करे। इस सिलसिले में महकमे कानून से राय ली जाएगी और इस मामले में एक मीटिंग तलब की जाएगी। వెంటనే ఒక మీటింగ్ కాల్ఫర్ చేస్తాం। తప్పకుండా వారికి దీంట్లో ఉన్నటువంటి సాధక బాధకాలన్నింటినీ కూడా చర్చించిన తర్వాత అధికారులతో పూర్తి నివేదిక తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ రీస్టార్ట్ ఎట్లా చేసి దీన్ని ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలనేటువంటి తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం। తర్వాత మీరు ఈ జ్యుడిషియల్ పవర్ కూడా ఈ వక్ఫ్ మన కమిటీకి ఇవ్వాలనేటువంటిది కూడా కోరడం జరిగింది। తప్పకుండా ఇది మరి ముఖ్యమంత్రి గారితో ఒకసారి చర్చించిన తర్వాత ఆఫ్టర్ మీటింగ్ మనం ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు నోటీస్ తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత మరి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఏవైనా మరి లా డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఇవ్వచ్చునా ఇవ్వరాదా, వీటన్నిటిని కూడా పరిశీలించిన తర్వాత తప్పకుండా మీరు కోరినట్టుగా మరి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తూ, మీరు అన్నట్టుగా అన్యాక్రాంతం అవుతున్నటువంటి విషయంలో ప్రభుత్వం కూడా చాలా చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తూ ఉన్నది। దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే దాదాపు ఈ అక్రమాలు చేసినటువంటి వాళ్ళను కూడా గుర్తించి వాళ్ళపైన కేసులు పెట్టడం కానీ, నోటీసులు ఇవ్వడం కానీ, వాళ్ళను వెకేట్ చేయించేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం కూడా పెద్ద మొత్తంలో జరుగుతూ ఉంది। మరి వీటికి సంబంధించి కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా కలెక్టర్స్ కావచ్చు, సీఈఓ కావచ్చు ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేస్తున్నారు। మా దగ్గర కూడా చాలా మంది దాదాపు వేల సంఖ్యలోనే వీళ్ళను గుర్తించిన సంఘటనలు ఉన్నాయి। ఈ ల్యాండ్స్ ను కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన। तेलंगाना हुकूमत ने असेंबली में 4 बिल्स पेश किए ताकि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और अराजियात के रजिस्ट्रेशन को डिजिटाइज करने की राह हमवार हो सके और रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाया जा सके। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राइट्स एंड लैंड पट्टादार पासबुक बिल 2020 और तेलंगाना अबोलिशन ऑफ पोस्ट एंड विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स बिल 2020 पेश किया। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने तेलंगाना म्यूनसिपल बिल तरमीमी बिल 2020 पेश किया। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने तेलंगाना पंचायत राज तरमीमी बिल 2020 को पेश किया। Move for leave to introduce the Telangana Rights in Land and Pattadar Passbook Bill 2020. Motion moved. The question is that the Telangana Rights in Land and Pattadar Passbooks Bill 2020 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. The motion is carried and bill is introduced. I beg to move for leave to introduce
the Telangana abolition of the post of Village Revenue Officer Bill 2020, sir. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2020. అధ్యక్ష 2020 తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టుటకు అనుమతి కోసం ప్రతిపాదిస్తున్నాను. Motion moved. The question is that the Telangana Panchayat Raj Amendment Bill 2020 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. The motion is carried and the bill is introduced. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इन बिल्स को शफाफियत लाने, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने और कम से कम इंसानी मदाखलत के लिए पेश किया गया है। इन्होंने कहा कि धरानी वेबसाइट, जिसका काफ़ी अरसे से इंतजार किया जा रहा था, जल्द ही कारकर्द बना दिया जाएगा, जिसके जरिए पूरी रियासत के अराजियात के रिकॉर्ड्स के डाटा तक आवाम की रसाई रहेगी। इन्होंने कहा कि मुकम्मल रजिस्ट्रेशन के अमल को डिजिटल बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने MROs को सब रजिस्ट्रार्स के इख्तियारात दिए हैं ताकि ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के काम अंजाम दिए जा सकें। इसी तरह सब रजिस्ट्रार्स को गैर ज़रई अराजियात रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के इख्तियार होंगे। अब लोग पेशगी दौर पर अपने स्लॉट्स की बुकिंग कर सकेंगे। ये तमाम काम मुनासिब दस्तावेज़ात दाखिल करने के बाद मुकम्मल कर लिए जाएंगे और अराजियात के रिकॉर्ड्स को बर वक्त अपडेट किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इदारे जात मुकामी में तकरीबन 90% जायदादों को डिजिटाइज करने का काम डिजिटल अंदाज में किया जाएगा। इन्होंने कहा कि मुकम्मल अराजियात और जायदादों का डाटा ऑनलाइन दस्तियाब रहेगा, जिससे गैर कानूनी मामलात को रोका जा सकेगा। डाटाबेस की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत, रियासत और दीगर रियासतों के कई मुकामात पर कई सर्वर लगाए गए हैं। अवाम अब ज़रई और गैर ज़रई अराजियात जायदादों को एक सरकारी दफ्तर से दूसरे सरकारी दफ्तर तक जाने के बजाय धरानी पोर्टल के जरिए एक बटन क्लिक करते हुए दूसरे ज़ुमरे में मुंतकिल कर सकते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना असेंबली में अवामी मसाइल को उठाया और साथ ही साथ तेलंगाना के वज़ीर आला की तारीफ की। इन्होंने कहा कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हम आपसे दूर नहीं होंगे। इन्होंने यकीन जाहिर किया कि TRS हुकूमत में अक़लियतों से इंसाफ होगा। For saying that he would consider in including COVID in Arogyashri. He said he'll consider, he'll think about it. I thank you very much, sir. Sir, any BPL person, CM रिलीफ फंड से कुछ भी अमाउंट उनको मुकर्रर करके दे दीजिए तो गरीबों को बहुत फायदा होगा। ये सब उसको आगे बढ़ के चला गया। गरीब की नौकरी नहीं है, खाने को खाना नहीं है। छोटे से घर में जहां पे 500, 800, 1000 का बिल आता था, उसको 4-4 हजार का बिल आया। बाज लोगों को 10-10, 20-20, 1-1 लाख का बिल आया। काइंडली लुक इनटू दैट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आज अगर अपने रिकॉर्ड में आकर बोले कि हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, नहीं, मैं हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहा था। इस वास्ते कि हुकूमत मेरी है, मैं आपके साथ हूं, आप पे तनकीद नहीं। हुकूमत की नाकामियों को और कामयाबियों को बताने में नाकाम जो हुए उसको उजागर कर रहा था। और आप मेरे दोस्त थे, मैं आपका एहतराम व इज्जत करता हूं। आपको हम कदर की नजर से देख, आज को भी बताना चाहता हूं कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, बराबर लड़ेंगे, तनकीद करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपसे दूर होंगे। मैं आज ऑन रिकॉर्ड आकर कहता हूं कि हर कोई कहता था कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें नहीं बनेगी, लेकिन मजलिस को, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और मुझे यकीन था कि मस्जिदें बनेंगी और हमारा चीफ मिनिस्टर बनाएगा उस मस्जिदों को। हम जाकर मिले और मैं ये कहूंगा कि उन्होंने 1 मिनट नहीं लिया, कहा कि नहीं, जो भी हुआ गलत हुआ, मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे अफसोस है और मुझे खराब दिखा। पूरे हालात बताए और बोले कि आप लोग कहां बनाना चाहते बोलिए। हमने कहा साहब हम जहां था वहीं बनाना चाहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए। फिर उसके बाद सीएम साहब ने कहा कि अकबर भाई देखिए, एक मस्जिद इधर थी, एक मस्जिद इधर थी, इसके बीच में जगह है, बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, पूरी जमीन ले लीजिए। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने बताया कि मरकजी हुकूमत से कोविड-19 को हराने के लिए कोई ख़ास माली मदद नहीं मिली। इन्होंने ऐवानों को बताया कि मरकज़ ने वेंटिलेटर्स दिए और तेलंगाना के बजट से इसे काटा जा रहा है। मरकज़ से सिर्फ बातें आई हैं, पैसे नहीं। रियासती हुकूमत से नाक पकड़कर रकम वसूल की जा रही है। कोई खास असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आए और इस दरमियान में जो पैसे नेशनल हेल्थ मिशन के तरफ रिलीज हुए वो आम रिलीजेस है,
वो है 256 करोड़ से, जस्ट 256 करोड़। एक 90 करोड़ अलग से दिए, अब उसका फिर उसमें गिनती करते हैं, हमारे बजट के साथ जोड़ते, क्या जोड़ते वो अंत में पता चलेगा, और कुछ नहीं इसके सिवा। इसके अलावा कोई असिस्टेंस आया जो कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में कहीं भी वेंटिलेटर नहीं था, ना मरकज के पास ना रियासत के पास। तो हम अपने कोशिश करें, हम एक 700-800 खरीद ली अपने कोशिशों पे, और मरकज का सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट दिए 647 वेंटिलेटर्स दिए, और उसको हमारे जो बजट होता है हिस्सा उसमें काट रहे। तो अलग से कुछ नहीं दिए, एक भी फ्री में नहीं, तो ये काटा जा रहा है। ये पता नहीं क्या होता है आखिर में, लास्ट में क्या करते नहीं मालूम। ये हकीकत है, बिकॉज दीज आर अकाउंट्स विच आर ऑडिटेबल, इसमें कोई झूठ भी नहीं बोल सकते। दिस विल गो टू द काग आल्सो व्हाट असिस्टेंस हैज कम। एक्चुअली ना के बराबर सर आया कुछ नहीं है, बातें आए लेकिन पैसे तो नहीं मिले। हम कुछ रास्ते बताए थे, उसको भी माना नहीं गया। कुछ बढ़ाने की बात कहे, माना नहीं गया। कम से कम लोन रिस्ट्रक्चरिंग करो बोले, वो भी माना नहीं गया। बिल्कुल नहीं सुने, और नाक नाक खींच के जो है वसूल कर रहे हैं। पूरे बैंक्स जितने भी रियासत के कर्जा है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी नहीं माने। FRBM बढ़ाने की बात बोले हम, वो भी नहीं माने। बढ़ाए लेकिन कंडीशन लगा दिए, आप पावर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करो तभी दे देंगे, फलाना करो दे देंगे, ढिमका करो दे देंगे, उस पर भी पाबंदियां लगा दी। तेलंगाना असेंबली में हैदराबाद के तारीखी हॉस्पिटल उस्मानिया जनरल अस्पताल की कदीम इमारत को मुनहदिम करने का मामला उठाया गया। बीजेपी के वाहिद MLA राजा सिंह ने अस्पताल की कदीम इमारत को मुनहदिम करने की मांग की। अकबरुद्दीन अवैसी ने तारीखी विरसे को बचाने का मुतालबा किया और इसको हैदराबाद की पहचान करार दिया। वज़ीर आला KCR ने बताया कि अस्पताल का मामला अदालत में ज़ेर दौरा है, हुकूमत अभी इस मामले पर कुछ नहीं कह सकती। हॉस्पिटल है, ठीक है, कई लोगों ने उसको नहीं तोड़ना है, ऐसे वो समय पर भी कुछ स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन आज उस विधानसभा का मैं विधायक होने के कारण यह कहना चाहता हूं कि आप इमीडिएट वो उस्मानिया हॉस्पिटल जो पुराना हॉस्पिटल है उसको तोड़कर नया हॉस्पिटल बनाइए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। वी आर अगेंस्ट द डिमोलिशन ऑफ उस्मानिया हॉस्पिटल। उस्मानिया हॉस्पिटल हमारी पहचान है, हमारी शान है, हैदराबाद की नाक है। आप खुदा के लिए उस्मानिया को गिराइए मत। मेनी हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को, कई हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को जो पुराने हैं उसको हम जिंदा रख सकते हैं। आज उस्मानिया गिरा तो कल के हाईकोर्ट को भी गिरा देंगे। तो आप बाजू में खुली जमीनें वहां बनाइए। एक हेरिटेज है, एक पहचान है, पुराने शहर का ज्वेल है। मैं कहूंगा, मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि उस्मानिया दवाखाने को मत गिराइए, उसको बनाइए, उसको जिंदा रखिए, उसकी अजमत को बहाल करिए, उसकी शान और शौकत को जो वीरान हो चुकी है उसको दोबारा बहाल करिए। और उस्मानिया हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया, वो कोर्ट में इट्स अ मैटर सब जुडिस। आई कैनॉट से एनीथिंग, आई कैनॉट प्रोक्लेम एनी डिसीजन बिकॉज इट्स सब जुडिस। देखते हैं हाईकोर्ट का आ जाए तो उसके बाद में फिर हम बैठक करेंगे, बात करेंगे जरूर। सिटी के पूरे MLA बुला के मैं खुद बात करता हूं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है। थैंक यू। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2479 ताज़ा मामले सामने आए। इस वबा से 10 अफराद की मौत हो गई। रियासत में इस मौजी मर्ज से मरने वालों की तादाद 916 हो गई। रियासत में कोरोना से रुबे सेहत होने वालों की तादाद 1,15,072 हो गई है। पीर और मंगल के दौरान 62,659 नमूनों की जांच की गई। रियासत में कोरोना के सरगर्म मामलात की तादाद 31,654 हो गई है और ताहाल 18,90,554 नमूनों की जांच की गई है। GHMC हदूद में 322 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जिला रंगारेड्डी में 188, मेडचल मलकाजगिरी जिले में 183, वरंगल अर्बन जिले में 124 और करीमनगर जिले में 120 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
तेलंगाना के गवर्नर ने रिटायर्ड आईएएस ओहदेदार से सी पार्था सारथी को तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर फायज किया। हुकूमत की सिफारिश पर गवर्नर डॉक्टर सौंदरराजन ने अहकामात जारी किए। पार्था सारथी 3 साल तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और इजहार तशक्कुर किया। पार्था सारथी वी नागी रेड्डी से ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। पार्था सारथी का तकर्रुर ऐसे वक्त दिया गया है जबकि फरवरी 2021 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। तेलुगु टीवी अदाकारा श्रावणी की लाश हैदराबाद के मधुरा नगर में वाक़ उनके फ्लैट में लटकी हुई पाई गई। यह वाक़या बीती रात SR नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। श्रावणी AP के ज़िला मगरबी गोदावरी की रहने वाली है। माजी में कई तेलुगु टीवी सीरियल्स में काम किया था और मौजूदा वक्त में 2 और सीरियल में काम कर रही थी। मंगल की शब वो अपने फ्लैट के कमरे में लटकी हुई पाई गई। इसके अरकान ख़ानदान ने इसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। अदाकारा के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसको देवराजू नामी शख्स ने हरासा किया, जिसने चंद माह पहले टिकटॉक के जरिए अदाकारा से मुलाकात की थी। हैदराबाद की मुकामी अदालत ने बस क्लीनर को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में कसूरवार पाया। अदालत ने 30 साला सत्यनारायणा को 2 साल की सजा और 1500 रुपए का जुर्माना आयद किया। बताया जा रहा है कि अप्रैल साल 2019 को चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि बस क्लीनर ने 8वीं क्लास की लड़की से स्कूल के सेलर में बदतमीजी की थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके अदालत में पेश किया था। अदालत ने सत्यनारायणा को सजा सुनाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।